Hi students, today I am going to start second chapter from your class 11 business studies, that is forms of business organization. In this chapter we are able to understand some important topics related to some business point of view and how many types of business are there in India. ये जो चैप्टर है बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, not only for students, for those who are able to start their business, who are able to expand their business in India. ओके सो इस चैप्टर में हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे वो है आइडेंटिफाई. हम लोग का मेन ध्यान इसमें ही रहेगा. आइडेंटिफाई डिफरेंट forms of business organization, explain features, merits and limitations of select forms of business organization. Next, distinguish between various forms of organization, analyze factor determining choice of an appropriate form of business organization. Okay, this is the main learning objectives in our second chapter. We have to understand that important learning objectives. Okay, so first one is identify different forms of business organization. इसको जानने से पहले इंट्रोडक्शन हम लोग को देना पड़ेगा. इंट्रोडक्शन ये चीज़ है कि बेसिकली मैंने जो बोला है कि इफ़ वन इज प्लानिंग टू स्टार्ट ए बिजनेस और if anyone is interested to expand an existing business, an important decisions related to the choose of the forms of business organizations. Okay, so उस समय कोई भी बिजनेस, फॉर एग्जांपल ये आदमी बिजनेस शुरू करने जा रहा है, जस्ट स्टार्ट ए बिजनेस, और एक आदमी है जो ऑलरेडी एक बिजनेस का ओनर है, उसका भी ब्रांच ओपन करेंगे. ठीक है, अभी उस बिजनेस को थोड़ा सा बड़ा करेंगे. उस समय बिजनेस का क्या पॉलिसी रहेगा? केस वन, ये केस टू. केस वन में मैंने क्या बोला, ये आदमी शुरू करने जा रहे हैं जस्ट बिजनेस, और केस टू में उस बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है. ठीक है, तो केस टू में एक्सपांड हो रहा है और केस वन में स्टार्ट हो रहा है बिजनेस. इन दोनों केस में बिजनेस का कौन सा बिजनेस वो चूज करेगा, ओनर कौन सा बिजनेस चूज करेगा, उसके बारे में ये चैप्टर हम लोगों को बोलेगा. ठीक है, सो बेसिकली various
forms of business organization from which one can choose the right one, include sole proprietorship, joint Hindu family business, partnership, cooperative societies, joint stock company. Okay, these are the various forms of business organization which one can choose the right one, include these 5 types of बिजनेस. ओके, सो मैंने क्या बोला था, ये आदमी और ये आदमी वो ही 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से एक ना एक चूज करेगा. अभी वो देखेगा कौन से में कौन सा जो बिजनेस है वो अच्छा है उसके लिए. ठीक है, सो मैं अभी डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ. मीनिंग से, बेसिकली मीनिंग से शुरू करूंगा अभी. A business enterprises is an institutional arrangement to form any business activity. Okay, a business enterprises is an institutional arrangement to form any business activity on the basis of ownership, enterprises can be divided into following 3 major categories. ठीक है, तो मैं उस ओनरशिप के बेसिस में 3 मेजर कैटेगरीज में मैं डिवाइड कर रहा हूं. तो 3 जो मेजर कैटेगरीज है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, इसको मैं 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करूंगा. ओके, इसमें से पहला है प्राइवेट एंटरप्राइजेस, second one is public enterprises, and third one is joint sector enterprises. So these are the 3 subcategory of forms of business enterprises: private, public and joint sector enterprises. Okay, basically private enterprises means what? Owned, managed and controlled by the private person. To directly write that thing, owned, managed and controlled by private person
ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल मीन्स जो आदमी जो बिजनेस शुरू कर रहा है, वो खुद का बिजनेस है, वो खुद ही कंट्रोल करेगा, खुद ही मैनेज करेगा, खुद ही उसका मालिक होगा, वो है प्राइवेट एंटरप्राइजेस। नाउ पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या है? सो पब्लिक एंटरप्राइजेस मीन्स ओन्ड मैनेज and controlled by गवर्नमेंट। याद रखना मैंने जो बोला है, ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। ओके, सो ये देखो, ये प्राइवेट पर्सन मैनेज कर रहा है, अभी गवर्नमेंट मैनेज कर रहा है। नेक्स्ट वन इज जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। नाम ही है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर का मतलब है उसमें कंट्रोलिंग पावर कैसे रहेगा? ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, देखो पहला क्या है? प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ये है प्राइवेट एंटरप्राइजेस। प्राइवेट एंटरप्राइजेस जिसमें ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट पर्सन। पब्लिक एंटरप्राइजेस जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। एंड थर्ड वन इज जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस जिसमें ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। सो ये जो तीन पॉइंट मैंने बोला है, इसमें से जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट भी रहेगा, प्राइवेट भी रहेगा, दोनों मिलकर उस बिजनेस को कंट्रोल करेगा। ओके, सो अभी जो मैंने बोला है कि टाइप्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस, इसमें अगर टाइप्स ऑफ लिखेंगे, टाइप्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, इसके अंदर आएगा सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, दैट इज हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस, जिसको इंडियन लॉ की द्वारा उसको बोलते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। 4 नंबर इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। 5 नंबर इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, सो इसमें से देखो, ये जो मैंने 3 पॉइंट बोला, पहला 3 पॉइंट, दैट 3 पॉइंट, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन कोऑपरेटिव, नॉन कॉर्पोरेट CORPORATE, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, दोनों को बोलेंगे कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये याद रखो, ये थोड़ा सा बुक में तुम लोगों को ना भी मिल सकता है, मगर उठा लो ये कॉपी में, मैंने जो जैसे लिखा है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इन तीनों को बोलेंगे नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस। किस लिए बोलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये इसके बारे में बात करेंगे। और कॉर्पोरेट फॉर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी को बोलेंगे। मगर इन पांचों को पांचों जो है, इन 5 points are comes under private enterprises. Okay, so these are the examples of private enterprises, types of private enterprises. Now types of public enterprises.
Okay, types of private public enterprises. Number one is departmental undertaking. Okay, number two is statutory corporation. Number three is गवर्नमेंट कंपनी. ओके, सो ये हो गया हम लोग का टाइप्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का एग्जांपल. सॉरी, दैट टाइप्स. ओके, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टेटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी. इससे पहले टाइप्स क्या था प्राइवेट एंटरप्राइजेस का? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी. अभी हम लोग पब्लिक एंटरप्राइजेस का कितना टाइप्स हम लोगों ने सीखा? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टेटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज. सो अभी आज हम लोग सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को लेके कुछ बात करेंगे. सोल प्रोप्राइटरशिप, ओके, इसको लेके देखो नाम में ही ये पहले है सोल, इसके बाद है प्रॉप राइटर, PROPRIETOR, सोल प्रोप्राइटर. हम लोग जानते हैं सोल मीन्स ओनली, और प्रोप्राइटर जानते हैं अकाउंट्स में हम लोगों ने सीख के आए हैं वो चीज मीन्स ओनर. यानी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे, इसको प्लस करेंगे, मार्च करेंगे, यानी जिसमें ओनली वन ओनर इज देयर, दिस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. सो हम लोग इसको लिख सकते हैं सोल प्रोप्राइटर means a firm organization in which there is only owner of business. Okay, he himself manages and is the only receipts of all profit and loss, that is risk. Okay, RISK, risk. So sole proprietor means a firm of business organization in which there is only owner of the business. He himself manages and is the only receipt of all profit or loss. Means जो खुद बिजनेस को संभाल लेगा और जो प्रॉफिट और लॉस का जो हकदार वो खुद ही होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. ओके, सो क्या क्या फीचर्स हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में देखते हैं? फीचर्स नंबर वन इज सिंगल ओनरशिप. तुम लोगों के साथ मैं एक मटेरियल शेयर करूंगा, सो उस मटेरियल से तुम लोग देख लेना. सिंगल ओनरशिप. इसके बाद है नो सेपरेट लीगल एंटिटी. इसके बाद नो लीगल फॉर्मेलिटीज. इसके बाद है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. इसके बाद है अनलिमिटेड लाइबिलिटी.
UNLIMITED, इसके बाद अनडिवाइडेड risk. 7 number is suitable for some special form of business. Suitable for some special form of business. इसके बाद 8 number is secrecy. ओके, सो मैं फर्स्ट जो पॉइंट है वो उससे शुरू करता हूँ. सिंगल ओनरशिप, इसका मतलब यही है कि ही इज सोल ओनर ऑफ ऑल एसेट्स एंड रिसोर्सेस ऑफ बिजनेस. ही इज ए सोल ओनर. रिमेंबर दैट थिंग. सिंगल ओनरशिप मीन्स ही इज ए सोल ओनर ऑफ ऑल एसेट्स एंड resources of business. Number 2 is no separate legal entity. Yes, the business has no separate existence or entity that of the business. All the asset and liabilities of the business are that of the businessman. Okay, so obviously legal entity का मतलब हम लोग जानते हैं. So the business has no separate legal entity that of the business. All the asset and liabilities of the business are that of the businessman. अगर एंटिटी होता तो बिजनेस का जो लाइबिलिटीज और एसेट है उसका सेपरेशन हो जाता. नो लीगल फॉर्मेलिटीज. यस, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, मैनेज एंड डिजॉल्व. या डिजॉल्व मीन्स फुल्ली बंद करो बिजनेस को, ऐसा. डिजॉल्व सच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इसके लिए कोई भी हम लोग को लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई भी कोर्ट में जाने का ज़रूरत नहीं है, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल ओनरशिप बिजनेस है. मैं मुझे अगर शुरू करना है तो मैं शुरू कर सकता हूँ. अभी मेरे घर में ही एक बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, बिकॉज मैं ओनर ही हूँ इस बिजनेस का. जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसका मैं बोल रहा हूँ. इसके बाद कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. यस, सोल प्रोप्राइटर हैज़ फुल पावर टू कंट्रोल एंड मैनेज सच ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज उसके हाथ में ही रहता है पूरा बिजनेस. नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. The liability of owner is unlimited. In case the asset of the business are not sufficient to meet its debt, the personal property of owner can be used for paying debt. ये याद रखना. अनलिमिटेड लाइबिलिटी में मैंने क्या बोला कि कोई भी ओनर का लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होगा, अनलिमिटेड होगा. अनलिमिटेड का मतलब यही है, फॉर एग्जांपल सोचो कि तुम्हारे पास तुम्हारे जो बिजनेस तुमने दिया उसमें 1 लाख रुपीस तुम्हारा एसेट है. ओके, मगर तुमने लोन वगैरह सब कुछ लेके तुम्हारे पास लाइबिलिटीज है 2 लाख रुपीस. लाइबिलिटीज जो तुम्हारा खुद का नहीं है, बाहर का है, तुम्हें देना पड़ेगा वो चीज़, वो है 2 लाख रुपीस. अचानक से तुम्हारा बिजनेस को अभी लॉस में रन कर रहे हैं, मगर लाइबिलिटीज तो तुम्हें देना पड़ेगा. अगर लोन ले चुके हो तुम बैंक से, अगर कोई पैसा अटका हुआ है वो मार्केट में, किसी से तुम उधार लेके वो सामान लेके आए हो बिजनेस में, उसको तो चुकाना पड़ेगा. उन लोग तो ये नहीं बोलेगा कि मेरा पैसा देने का ज़रूरत नहीं है. सो उस समय क्या होगा, तुम्हारा जो खुद का जो एसेट है, ये एसेट तो तुम्हारा बिजनेस का है, इसके साथ तुम्हारा फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक कार है, तुम्हारे पास एक घर है, सबको तुम सोल्ड करके उस पैसे को देना पड़ेगा. इसमें क्या होगा, इसमें लाइबिलिटी जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होगा, ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है. ओके, सो एक ओनर का रिस्क फैक्टर तो ज़्यादा रहेगा इसमें. मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, लाइबिलिटी ऑफ द ओनर इज अनलिमिटेड इन द केस the asset of the business are not sufficient to meet its debt. The personal property can be used for paying the debt. Okay, next one is undivided risk. It means the owner bears all the losses and enjoys all the gains. So ये undivided risk का यही फैक्टर है कि
जो गेन होगा, जो ओनर का जो लॉस होगा, ये सभी ओनर खुद ही उसका हकदार होगा। ठीक है। इसके बाद है सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। इट इज सुटेबल इन एरियाज ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विस एंड स्मॉल स्केल एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, बेकरी, ब्यूटी पार्लर। इसके लिए वो सुटेबल है ये बिजनेस। ओके। एंड देन secrecy, yes, all the important information concerning the business results only with the owner, so that no outside party can take any advantages of it। तो ये ओनर के पास ही सब कुछ रहेगा, जो बिजनेस का जो हालत है, क्या है क्या नहीं है, वो ओनर ही जानता है। तो इसके लिए वो सीक्रेसी ओनर के पास ही रहेगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दैट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। नेक्स्ट डे में हम लोग उसका मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में बात करेंगे। सो आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक था, ये चैप्टर किसको लेके बात कर रहा है वो, और इसके बाद फॉर्म्स जो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है। इसके बाद मैंने तुम लोगों को दिखाया कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस कैसे डिवाइड होता है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस, जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइजेस। उस प्राइवेट एंटरप्राइजेस के अंदर तुम लोगों का क्या क्या पढ़ना पड़ता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। वो ये तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कोऑपरेटिव फॉर्म। इन दोनों को बोलेंगे कोऑपरेटिव फॉर्म। इसके अंदर ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसको लेके मैंने आज बात किया। ओके, उसको लेके मैंने आज बात किया। तो ये था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का। इसका मैंने फीचर्स भी तुम लोगों के साथ शेयर किया। नेक्स्ट डे में हम लोग उसका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स और हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, बाय।